So acceptance sampling. What is the concept? I'll tell you. Uh, when parts are manufactured and the those parts are given to sub assemblies, and that product is checked at the end. Uh, when every part is checked, then we can call it as 100% inspection. Of course, 100% inspection is good because you can check each and every part, which part is to be accepted, which is correct, that is accepted, which part is not correct, that is rejected. Sometimes some rejected parts are given to rework. Means in reject also there are two categories. Some parts are put in the rework bin, some parts are put in uh, reject bin. For example, if some component is a turning component and your diameter is bigger, you can take one more cut and bring it within the tolerance. Still, there is a that allowance for machining. In case it is a whole part, then if the bore size is less than the acceptance limit or that your specified limit, then you can take one more cut in the boring and bring it in the acceptance limit, that is the your control limit. You can bring that in, and you can rework that, and you can accept that part. Means that much material, that much input is reduced later on. Means that one part which is going to be rejected, that we can bring it to acceptance part. But some parts are rejected. Now that is nothing but scrap only, that you have to again put into the furnace and other that. So that example I am giving you, that is for 100% inspection. But when the parts are manufactured in thousands or in 10,000s, then it is not possible to check each and every part. Even if you are checking one or two parts in the in-process gauging, the assembly of that, it is not possible. Every part, it is not possible to get checked. For example, in case of that mass production, that is automobile industry, etc. So what is to be uh, blindly trust on your producer? Some acceptance limit is given. Acceptance limit means it is negotiated between producer and consumer, that is the customer, that in this lot some 10% park may be out of that limit, and that too, that up to certain level we can accept, and other 90% parts will be perfect, and 10% park maybe there is a risk that it is a wrong part, that is the part which is not fitting within your specified limit will be accepted. 90% will be correct. So some producers say that no, this particular application is very stringent, so we can go up to 5% only. Means 5% there is a chance that you can accept means the wrong part. Similarly, that is actually the OC curve, that is operating characteristic curve. That customer also means producer also agrees on the fact that there is a 10% chance in the acceptance sampling plan that your some good parts will also be rejected. Like that, 10% chance and 90% chance that good parts are accepted. You will ask how you are doing that. So that is actually decided by operating characteristic curve. That is later on, it is a part of acceptance sampling, and how that curve is plotted, etc., that we are going to discuss. If there is 100% inspection, then that curve is actually vertical. Means there is clear cut demarcation between good and bad part. So that OC curve is actually producer that raise acceptance percentage, and on the x-axis there is a percentage defective.
So if you can say that some 5% defective has been accepted. So in the defect, if there is a 2.5% defective or 5% defective, so that from that you can draw a vertical line, and up to that you can accept, and after that you should clear vertical 100% inspection. But when see curve, downward curve that we are going to see, and there are certain chances that good parts may be rejected, or bad parts may be accepted. So that we are going to decide. So how much that should be, whether it should be 5%, 10%, or 12%. No, it should not exceed 20%, depending upon the seriousness of that product in the practical application. So we are starting with the OC curve. 100% इंस्पेक्शन का कुछ मीन्स आप बोलेंगे सर ये सब करने से अच्छा 100% इंस्पेक्शन क्यों नहीं अच्छा? थाउजेंड्स ऑफ कंपोनेंट में वो पॉसिबल नहीं है. उसमें आपको सैम्पलिंग लेना पड़ेगा. जैसे पी चार्ट में वगैरह हम लोग करते थे ना, सैंपल लेते थे और वो सैंपल लेके वो पूरे लॉट का वो भविष्य हम लोग तय करते थे. वैसा एक्सेप्टेंस सैंपलिंग में भी है. So that we will go with this now. So what we are going to see, these are the things we are going to see. These are the acceptance sampling. We are going you here. What is acceptance sampling? A form of inspection applied to lots or batches of atoms before or after a process to judge conformance to predetermined standards. A form of inspection applied to lots, means some lots are there, from that some samples are taken, and they are checked actually, and there is some acceptance number. So suppose there is a lot of 10,000 pieces, okay, we will randomly take some samples. Let us say we will take 100 samples. Out of 100 samples, if 4 or more are bad according to conformance, we will reject the entire lot. Then if it is less than 4, then we will accept the lot. Like that, that acceptance number has to be fixed. एक एग्जांपल आपको बताता है. ये अपने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में से वगैरह कभी कभी ये कॉटन शर्ट्स वगैरह आप लोग देखते होंगे हुतात्मा चौक स्ट्रीट में या फोर्ट में वगैरह, या फैशन स्ट्रीट में कभी कभी ये लोग अपने क्लॉथ वगैरह बेचने जाते हैं. तो लोग देखते रहते हैं कैसा सम क्लॉथ्स आर रियली गुड, और वो लोग 100 रुपीज में बेचते थे. अभी शायद 200 रुपीज किए उन्होंने. पहले कभी मैं घूमने जाता था तो मैं कुछ लेके आता था वहां से मेट्रो के सामने वगैरह. कुछ पीसेस बहुत अच्छे निकलते थे, फ्रेंकली टू बी स्पीकिंग. तो ये कैसा है एक्चुअली? तो यही है वो कि जो हम लोग थाउजेंड्स में लॉट तैयार करते हैं अभी. तो एक्सेप्टेंस से कुछ सैंपल्स निकालेंगे वो लोग, और वो सैंपल अगर 4 में से ज्यादा रिजेक्ट है, समझो उन्होंने 100 सैंपल निकाले रैंडमली, यहाँ से अलग अलग जगह से निकालेंगे, ऊपर से नीचे से मिक्स करके. मतलब ऐसा ना हो जाए कि ये अच्छे ऊपर रखे बाकी कुछ डिफेक्टिव नीचे रखे, ऐसा नहीं हो जाए, इसलिए वो सब सैंपल निकलते हैं. और हम लोग फिर उसका एक्सेप्टेंस किया उन्होंने. 4 से अगर ज्यादा रिजेक्ट हो गए तो उन्होंने एंटायर जहाज वो तुम्हारा वापस भेज दिया, एंटायर शिप. अभी ये लोग क्या करेंगे यार? वो उन्होंने सिक्का भी कुछ ये किया कि वो भाई ये रिजेक्ट करेंगे. या तो उनको अभी आके 100% इंस्पेक्शन करना है, लेकिन उनको उसके लिए टाइम नहीं, उनका प्रोडक्शन तो जारी है. वो लोगों ने उसका लिलाव कर दिया, ऑक्शन. उस ऑक्शन में कुछ ये फेरी वाले वगैरह लेके आते हैं किलोस पे, और बाहर आके बेचते हैं. अभी वो उनके जो 200-300 जो पड़े हैं शर्ट्स या जो भी उनके ये ट्राउजर्स या, उसमें से कुछ अच्छे हैं, क्योंकि वो सैंपलिंग में रिजेक्ट हो गए. इसका मतलब हर एक अच्छे हर एक बुरा है ऐसा नहीं है. तो ऐसा ये सब चलता है. मतलब उसका सेल करके वो लोग पैसा निकालते हैं. मतलब ऐसा कि ऑप्शन में कि अभी ये वेस्ट ही करना है तो ये क्यों ना करें.
सो इट इज लाइक दैट। आप बोलेंगे सर उसमें से 100% इंस्पेक्शन करके गुड लॉट में बाद में भेज सकते हैं। भाई किसको टाइम है? टाइम का वांदा है ना, ये सब टाइम का वांदा है, क्योंकि कंटिन्यूस उनका रेगुलर प्रोडक्शन जारी है, उनका वो रोज का प्रोडक्शन, रोज का ये बन के वो जाना तय। और समझो यहाँ से कोई गलत फिर से भेज दिया और वो एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग में निकल के पूरा अगर वापस आया रिजेक्टेड, तो और 2-4 बार ऐसा रिजेक्ट हो जाने के बाद आपका क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाता है, आपका ऑर्डर कैंसिल हो सकता है, वो भी उनके टर्म कॉन्ट्रैक्ट में। तो वो लोग ऐसा करते नहीं। हाँ, इसीलिए एक कॉटन ट्राउजर या ये एक शर्ट तुम्हारा इतना महंगा आएगा, करीब करीब अभी 2-2.5 हजार कीमत है उसकी। एक्चुअली प्रोडक्शन कीमत बहुत कम है, क्योंकि वो मास प्रोडक्शन में, ऑटोमेशन में। एक एग्जांपल मैंने दिया अपना डेली जो इसका है वो अपना, मतलब एवरीबॉडी इज फेसिंग दैट, everybody is actually interested in that because it is directly concerned with your looks and decency and everything. That's the thing actually going on. So that is actually 100% inspection versus sampling. Sampling में ये डर है कि तुम्हारा अच्छा माल भी रिजेक्ट हो जाए, और कुछ बुरा माल भी कस्टमर को भी रिस्क है कि वो आ जाए। तो वो एक्चुअली उसके लिए एक ओसी कर्व पे एक्चुअली एग्री होते हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, कि इन लॉट्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पार्ट्स व्हेन दे आर प्रोड्यूस, ये थोड़ा सा चांस है। तो ये सब कैसा है अभी, ये it is a decision making tool by which a conclusion is reached regarding acceptability of a lot by both consumer and producer. Okay, so acceptance sampling. So you can see this, थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ आपको, थोड़ा सा just go on reading this, आपके लिए बनाया है स्पेशल, आप लोग पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा किया मैंने बच्चों। हेलो, प्लीज गिव मी फीडबैक, कैन यू रीड इट कंफर्टेबली? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. okay, then take your 2-3 minutes for this. उन्होंने यहाँ पे कंप्यूटर का एग्जांपल दिया है, रैंडमली टेस्टिंग सर्टेन नंबर ऑफ कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि उसमें अगर उन्होंने कुछ टेस्टिंग किया उनका और उनको ऐसा मालूम पड़ा कि लो ग्रेड के पार्ट्स है, या वो ऑपरेशन बराबर नहीं है, विजिबिलिटी बराबर नहीं है, तो वो लोग पूरा लॉट रिजेक्ट कर सकते हैं आपके। तो आपको मतलब ऐसा वेस्ट पार्ट आपका जो भी है, कोई रिजेक्टेड पार्ट, वो करके असेंबली करना फिर वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका अगर बैड लक है तो आप लोग पकड़े जाओगे इसमें। क्योंकि वही अगर उन्होंने सैंपल ले लिया तो आपके एंटायर लॉट का भविष्य वही पार्ट आपका तय करने वाला है। So naturally, what producer will do, they will not go for that. Okay, so of course these things I'm going to give you later on also, you can read. तो मैं थोड़ा आगे जाता हूँ बच्चों। Okay, so that this particular paragraph from one book I found very important, तो मैंने मेरे इसमें डाल दिया ताकि मेरे बच्चे इसको पढ़े। So these all things you can put in acceptance sampling. What is acceptance sampling? How it is different from 100% inspection वगैरह वगैरह। और आप लोग नेट का भी सहारा ले सकते हो, कोरोना टाइम है इसलिए बस, बाकी नहीं तो मेरे बुक्स आपके लिए थे पूरे। मैं आगे जाता हूँ, जस्ट अ मिनट।
इंस्पेक्टिंग आइटम्स फ्रॉम लॉट. बच्चों जस्ट गो थ्रू दैट अगेन. ये एप्पल्स जो है इसको एक्सेप्टेंस सैंपलिंग कर रहे हैं. अलग अलग ऐसा क्रेट भर के आ रहे हैं बाजार पेट में, और वो आदमी है ना सैंपलिंग ले रहा है. देखो, when every item is not physically possible, that what I was telling you. अब ये देखो, हर एक सफरचंद चेक करके नहीं देख सकता है, हर एक आपका सेब एप्पल नहीं चेक कर सकता. तो फिर उसको सैंपलिंग कैसा लेना है, इसमें से डिसीजन कैसा लेना है. तो ये देखो, इन्होंने एक एग्जांपल दे दिए. वो कुछ रैंडमली कुछ बॉक्सेस निकालेंगे. उसमें एक बॉक्स में समझो के एक कितने अभी यहाँ पे दिख रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 बाई 6 मतलब 36 का ऊपर का हिस्सा है. उसके नीचे 36 और उसके नीचे और 36 रहेंगे. 36 इंटू 36 इंटू 36 कितना होता है, 118 कुछ होता है ना. हा? तो इसमें से वो लोग डिसाइड करेंगे. अगर 4 या 3 पे एक्सेप्ट करेंगे, रैंडमली ले लेंगे ऊपर नीचे से, ऐसा 3 तक अगर एक्सेप्टेंस नंबर है, मतलब 3 तक रिजेक्ट हो गए बैड ये क्वालिटी, और बाकी तो वो देखेंगे कि हम लोग, मतलब वो क्या करेंगे, रैंडमली सिलेक्ट करेंगे. ये एक बॉक्स हम सिलेक्ट करेंगे इसमें से, और इसमें से सभी चेक करेंगे. सभी चेक करने के बाद 118 में से अगर 3 रिजेक्ट हो गए चलेगा, 2 रिजेक्ट हो गए बहुत अच्छा, 1 रिजेक्ट हो गया बहुत अच्छा, कोई रिजेक्ट नहीं होगा, 1 नंबर. लेकिन 4 रिजेक्ट हो गए तो सिर्फ यही एक ही बॉक्स नहीं, पूरे बॉक्स वापस भेजेंगे. दैट इज नोन एज सैंपलिंग इंस्पेक्शन. तो उन्होंने ये बॉक्स भी लिया, वो रैंडमली ले लिया, बॉक्स भी ले लिया, वो रैंडमली ले लिया, और उसके पूरे सैंपल उन्होंने चेक किए. तो दिस इज एक्चुअली द सैंपलिंग इंस्पेक्शन. आप क्या कर सकते हैं, देखो ना, अगर ये ऐसे बॉक्सेस आपके घर में आ गए ट्रक भर के पूरे, आप सभी थोड़ी चेक करने वाले. खाते टाइम आपको मालूम पड़ेगा, यार इसने चूना लगाया, देखो ये बॉक्स कैसा निकला, ये बॉक्स. लेकिन 100% हाँ, मतलब 100% इंस्पेक्शन पॉसिबल ही नहीं ना. सो यू हैव टू गो विद द सैंपलिंग इंस्पेक्शन. सैंपलिंग इंस्पेक्शन के साथ आपका टाइम बचेगा. 100% इंस्पेक्शन में और एक चीज है कि कभी कभी कोई 100% इंस्पेक्शन आप करने लगोगे तो एक 300-400 आइटम के बाद आप थक जाओगे. सो ड्यू टू फटीग एंड बोर्डरम आपका मिस्टेक हो जाएगा. आप एक्सेप्टेड भी रिजेक्ट में डालेंगे, रिजेक्टेड भी आपको, क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस वर्क रहेगा फिर वो. तो 100% इंस्पेक्शन ऑलवेज इट इज नॉट पॉसिबल. सो दिस इज द अल्टरनेटिव फॉर दैट. Okay, so you just go through this. Here it is given testing of eggs for Salmonella, a bacteria that occurs mainly in the gut, that is intestine, especially a serotype causing food poisoning. तो उसके लिए भी चेक किया जाता है. कुछ अंडे, अगर अंडे का क्रेट आया तो वो रैंडमली अंडे ले लेंगे, अंडे फोड़ेंगे बाकायदा हम लोग. उसके बाद में उसके लिए वो कुछ बैक्टीरिया है क्या, वो एक इंटेस्टाइनल पॉइजनिंग के लिए वो चेक करेंगे हम लोग. मतलब ये अन्न प्रशासन की जवाबदारी एक्चुअली नहीं है, तो फिर वो अंडे का लॉट एक्सेप्ट करेंगे. अभी कितना सीरियसली होता है इंडिया में, गॉड नोज, क्योंकि जितने लोग हैं उतने अंडे बेचने वाले मौजूद है हर एक एरिया में. तो कहाँ कहाँ से लाते हैं, कौन चेक करता है, क्या कोई चुरा के ला कहाँ से, तो कुछ मालूम नहीं इतना. बट एक्चुअली द प्रोसीजर शुड बी दैट. सो ये फ्रूट के लिए और ये एग्स के लिए ये देखो ये बताया. अभी ये अन्न प्रशासन का सब काम है ये, क्योंकि वो डायरेक्टली अपने हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है. मतलब है थोड़ा कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ, अच्छे क्वालिटी का खाओ. ऐसा बीमारी वाला फूड वगैरह अगर है, सस्ता है इसलिए ले लिया, और उसमें ऐसे कुछ बैक्टीरिया वगैरह रहेगा तो मुश्किल हो जाएगी. एंड देन यू कैन सी, ये देखो, कंटिन्यूड, द डिस्क्रिप्शन इज कंटिन्यूड. सो ये जो बैक्टीरिया चेक करने का वो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, वो सेम हमने लिया है. ये स्लाइड और ये स्लाइड शायद सेम है, रीअरेंजमेंट किया है मैंने खाली. सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स रैंडमली इंस्पेक्टिंग आइटम फ्रॉम द लॉट. सो हियर, हाँ, सो
खाली उसका थोड़ा सा ये बड़ा कर दिया है मैंने, स्लाइड थोड़ी डिजाइन वाली वगैरह कर दिया, सेम स्लाइड है। तो आगे जाएंगे हम लोग सैम्पलिंग प्लान, अलग अलग सैम्पलिंग प्लान कौन से हैं वो हम लोग देखेंगे। सैम्पलिंग प्लान स्पेसिफाई द लॉट साइज, सैंपल साइज एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, एक लॉट साइज आर लॉट ऑफ पीसेस। ओके, देखे ना हमने अपने ये सेब देखे ना अपने एप्पल्स, तो उसमें से thousands of those apples are known as lot size. Then you have to take some samples, 100 samples. Okay, so 100 is known as sample size. Now you have to वो sample size आपकी 100 है, हाँ? तो ऐसे फिर number of samples आप कितने लोगे, वो भी चेक करना है आपको हमको। अभी आप बोलेंगे एक सैंपल सिलेक्ट करने के बाद नंबर ऑफ सैंपल का क्या काम है। ये नंबर ऑफ सैंपल का काम डबल सैंपलिंग प्लान, मल्टीपल सैंपलिंग प्लान इसमें रहता है। सिंगल सैंपलिंग में एक ही सैंपल लेते हैं, 100 पीसेस उसमें से लेते हैं, यानी एक क्रेट हम लोग लेते हैं। ओके, इन शॉर्ट अभी जो 118 का हमने देखा ना, वो इसका एप्पल का वो एक सैंपल होगा, एक बॉक्स यानी एक सैंपल, वो सैंपल साइज कितनी है, 118 है। वैसे डबल सैंपलिंग भी एक रहता है, वो हम देखेंगे डबल सैंपलिंग के क्या है। आपको ऐसा लगता है कि एक सैंपलिंग में उस प्रोड्यूसर पे अन्याय होगा, तो आप डबल सैंपलिंग के लिए जा सकते हैं। वो डबल सैंपलिंग प्लान क्या है वो भी हम लोग देख लेंगे। ओके, लेकिन उसके पहले हम लोग सिक्वेंशियली जाएंगे, जैसे स्लाइड्स मैंने अब बनाए हैं आपको समझने के लिए। पहले मैं खुद स्टूडेंट के रूप में मैंने देखा कि स्लाइड कैसे अरेंज करने है भाई। मैंने ये कुछ नेट से लिए, मैंने कुछ तैयार किया, ऐसे कॉम्बिनेशन मैंने तैयार किया। ये जो ब्लैक वाले है मैंने डायरेक्टली नेट से ले लिया, एक प्रेजेंटेशन से मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया अपने बच्चों के लिए। व्हाइट जो तैयार किए हैं डिजाइन वाले वगैरह वो खास वो मैंने खुद तैयार किए, तो ऐसा कॉम्बिनेशन है। सो इट्स अ गुड मटेरियल आई हैव टेकन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस एंड दैट आई एम ट्राइंग टू गिव यू। तो ये सैम्पलिंग प्लान कौन से रहते हैं, तो ये वेरिएबल सैम्पलिंग जो है ना, ये वेरिएबल सैम्पलिंग ये यानी कौन सा मालूम है क्या, अपना वो पी चार्ट सी चार्ट वाला वो हो गया, मतलब वेरिएबल। तो चार्ट्स फॉर वेरिएबल वगैरह वो जैसा हो गया। अब ये एट्रीब्यूट सैम्पलिंग, यस और नो, यस और नो मतलब एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ये जो करना है ना, तो इसके लिए कहते हैं एट्रीब्यूट सैम्पलिंग। व्हाट इज एट्रीब्यूट सैम्पलिंग, आपको एक ही डिसीजन लेना है, यस और नो, एक्सेप्ट और रिजेक्ट, बीच का स्टेज नहीं। वेरिएबल में क्या है कि एक अलग अलग वेरिएशन में आपको एक्सेप्ट करना है, मतलब ये वेरिएशन में इतने होने चाहिए, ये डायमेंशन में इतने होने चाहिए, ये डायमेंशन में इतने होने चाहिए, तो वो प्लान है, वो अलग है। वो वी आर नॉट इंटरेस्टेड दैट in your syllabus. In your syllabus we are interested in yes or no type plan, that is attribute sampling. इसमें आपके सिंगल सैम्पलिंग प्लान एंड डबल सैम्पलिंग प्लान आपके इसमें है, सिलेबस में मेंशन किया है। मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान, सिक्वेंशियल सैम्पलिंग प्लान भी है आगे। तो ये सिंगल और डबल हम लोग देखेंगे, थोड़ा मल्टीपल के बारे में भी। You can see here when the testing is destructive. अब ये देखो, कभी कभी आप लोगों ने वो सब देखा कि 100% इंस्ट्रक्शन ऑलवेज पॉसिबल नहीं है, और वो बोल ड्रम वगैरह से आदमी गलती कर सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू क्वांटिटी आल्सो, एंड इट इज आल्सो नॉट पॉसिबल व्हेन देयर इज अ डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। अभी आपको 1000 अंडे हमने दे दिए, आपने 1000 के 1000 अंडे फोड़ के दिखाए और बाद में बोले नहीं नहीं इसमें कुछ ये नहीं है, क्या जर्म्स वगैरह कुछ नहीं है, तो प्रोड्यूसर बोलेगा ठीक है फिर दे दो पैसा, दिया पैसा, अब खाओगे क्या, आमलेट किसका बनाओगे, वो क्या कवर का बनाओगे टूटा हुआ, पूरा तो चला गया ना पूरा। अब टेस्टिंग में आपका मतलब 100% इंस्पेक्शन तो पॉसिबल नहीं, सभी सेब ये किए, चेक किए, काटे, क्या गांव को बांटना है क्या, बाद में कस्टमर को क्या दोगे। मैं
not always possible to see the, हाँ ऊपर से साइज वगैरह चेक करना है तो भी पॉसिबल नहीं एक्चुअली। तो लेकिन ये डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, जब काट के देखना है प्रोडक्ट को वगैरह, तब तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो वो केस में तो हमको सैम्पलिंग के लिए जाना है, जैसे एक का प्रोडक्शन देखा, फ्रूट का देखा जो हमने, तो ऐसा। When the cost of 100% inspection is extremely high and it is not technologically feasible, then you have to trust the producer and give that sampling। और प्रोड्यूसर को भी डर है कि बैड भेजा और वही अगर सैम्पलिंग में निकला तो पूरा हमारा रिजेक्ट कर देगा। So when the vendor has an excellent quality history and some reduction in inspection from 100% is desired, but the vendor's process capability is sufficiently low as to make no inspection and unsatisfactory alternatives। का मतलब अगर वेंडर का प्रोसेस कैपेबिलिटी कम है, यानी हमने उसका प्रोडक्शन होते होते देखा है, हमने उसका पी चार्ट, एक्स बार आर चार्ट हमने चेक किया उसके वर्कशॉप का, और हमेशा अपने स्पेसिफिकेशन लिमिट से उसका वेरिएशन ज्यादा आता है। हमने कुछ एग्जांपल्स देखे जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए एक्स बार आर चार्ट का और पी चार्ट का, नंबर ऑफ डिफेक्टिव के लिए और वेरिएबल के लिए, दोनों हमने चेक किया। तो हमको ऐसा मालूम पड़ा कि अपने प्रोसेस अच्छे थे, एक्स बार आर चार्ट में तो वो एक्सट्रीमली अंदर था, पी चार्ट में एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो थोड़ा सा बाहर गया था और बाद में वो इजी आया। तो उसके ऊपर थोड़ा नजर रखो कि कौन से पीरियड में वो ऊपर गया था, वही पीरियड में बाद में 2-3 बार चेक करो। तो आपको इधर स्पोराडिक स्पाइक एक दिखा था आपको, यानी एक टेम्पररीली थोड़ा सा हाई, एक आउट ऑफ ऑर्डर दिखा था, दैट मे बी सम अदर रीजन, दैट इज असाइनेबल कॉजेस वी कैन से, हार्डर मटेरियल, टूरिस्ट टेम्पररीली सेटबैक, लेकिन बाद में वो प्रोसेस कंट्रोल में था, तो दैट यू कैन एक्सेप्ट। अगर ऐसे 3-4 बार होता था तो वो प्रोसेस अच्छा करने के लिए हमको उसके ऊपर काम करना पड़ता है। स्मॉल n इज अ सैंपल साइज। ईच आइटम इन द सैंपल, एक सैंपल ले लिया हमने, जैसा मैंने एक एग्जांपल दिया कि थाउजेंड्स ऑफ कंपोनेंट्स आर कमिंग, सो कैपिटल N इज 1000, उसमें से हमने 100 कंपोनेंट निकाले या 50 निकाले, जो भी आपका जो प्लान है इसके हिसाब से, तो n small n will be 50 or 100. Now each item in that sample is examined and classified as good or defective, मतलब accept or reject, मतलब अच्छे है या बुरे है, ये हमारे मापदंड के हिसाब से हमने चेक किया। अभी if the number of defective exceeds a specified rejection number C, that is cut off point, the whole lot is rejected, otherwise accepted। एक एक्सेप्टेंस नंबर रहेगा हमारा और रिजेक्शन नंबर रहेगा। एक्सेप्टेंस नंबर रहेगा 2, अब 50 लिए तो हम दो एक्सेप्टेंस नंबर रहेगा, मतलब 50 में से अगर 2 डिफेक्टिव है वी विल एक्सेप्ट द लॉट। आप बोलेंगे 1 और 0 का क्या, बहुत ही अच्छा, वी विल फोन हिम एंड थैंक यू, अरे बाबा अच्छा क्वालिटी भेजा है, थैंक यू वेरी मच। 0 और 1 है तो बहुत ही अच्छा है। 2 तक एक्सेप्टेंस नंबर C, एक्सेप्टेंस नंबर इज C एक्चुअली, ये जरा गलत दिया है इन्होंने, C is acceptance number 2 and R is a rejection number, so up to specified rejection number C, that is cut off point उन्होंने बोला है, बराबर है, इन्होंने बोला specified rejection number मतलब C is actually known as acceptance number, that is 2 and 3 is rejection number, remember ये हर एक चीज, ये जो प्रेजेंटेशन देते हैं उनका इनसे अच्छा हम लोग सिखाते हैं, हम ज्यादा प्रोफेशनल है। कभी कभी ये सब बाकी चीज ये लोग देते हैं, वो डेकोरेशन वगैरह अच्छा रहता है इनका, लेकिन बच्चों को एग्जैक्ट समझने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया 50 का एक लॉट लिया, n स्मॉल साइज इज 50, स्मॉल n इज 50, एक्सेप्टेंस नंबर C इज 2, 0 1 2, ये जो है ये अगर डिफेक्ट आए सैंपल में आउट ऑफ 50, सब चेक करने वाले हम लोग 50, तो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे वो एंटायर लॉट 1000 वाला। अगर रिजेक्शन नंबर 3 और मोर अगर आ गए तो वी विल सेंड बैक द एंटायर लॉट ऑफ 1000 कि बाबा तुम्हारा माल बराबर में हमको नहीं लेने का है, ऐसे जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो टाइम। हाँ तो फिर ठीक है, वो लोग बोलेंगे हमारा भी कोई रिप्रेजेंटेटिव आना चाहिए, सामने करेगा यार, तुम्हारा जो आदमी लेके आया उसके सामने इंस्पेक्शन होगा, सामने करेगा, तुम्हारा भी एक आदमी रहेगा उसके सामने,
हाँ, क्योंकि वो लोग बोलेगा यार ऐसा कैसा आप बोलते हो, हमने इतना दिल से किया, इतना सब मेहनत की, इतना पैसा खर्च किया, मशीनरी नए लिए, इंस्पेक्शन आइटम बिठाया, ऐसा कैसा आप बोल सकते हो। ये झगड़ा कभी कभी हो सकता है। इसलिए फिर उसका ये है कि तुम्हारा एक रिप्रेजेंटेटिव दे दो, तुम्हारा तो है ही एक माल लेके आने वाला। हाँ, मालक का भाई आता है या और कोई विश्वासु आदमी आता है, उसके सामने चेक करेंगे, तो बोलेंगे तुम्हारे माल में क्या है, उसको दिखाएंगे क्या है रे, दो चार डाली निकल देगा, अंदर से पूरा सड़का है, पूरा उसको रोग लगा है उसका अलग अलग टाइप का, ये क्या दिया रे तुम लोग, भाई तुम ही खा जाओ, हमको नहीं चाहिए। होता है ना, कभी कभी आप लोग देखते होंगे बागवान में इधर उधर। तो वो उसके ऊपर से रेट, इसका फल बाल का और बागवान का तो अलग ही रहता है, वो तो उसके ऊपर क्वालिटी देख के रेट तय करता है। वो टाइम पे भी वो रैंडम सैंपल लेके देखता है कैसा है क्या है। तो ये होता रहता है। इतना करने के बाद भी कभी कभी तुम फ्रूट खाते हो तो तुमको एक आधा फ्रूट बेकार नहीं करता, सो इट हैपेंस ना, बिकॉज 100% इंस्पेक्शन इज नॉट पॉसिबल, हर एक चीज खा के तो नहीं दे सकते, सो इट हैपेंस इन रैंडम सैम्पलिंग। इतना सब केयर लेने के बाद भी जो होना है वो थोड़ा बहुत तो होना ही है, बट कुछ किया ही नहीं, विदाउट इंस्पेक्शन यू आर एक्सेप्टिंग, मतलब फिर सब मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब सिंगल सैम्पलिंग प्लान ये हो गए। आगे जाएंगे हम लोग। सिंगल सैम्पलिंग प्लान मैंने अपने इससे लिखा है, मतलब अपने स्टाइल से लिखा है, एक बुक में अच्छा दिया था वो स्टाइल से लिखा है। सिंगल सैम्पलिंग प्लान फॉर एट्रीब्यूट्स, ओके। n is number of size lot, let us say n 10,000, then sample size n is taken 89. मॉन्टगोमरी नाम का एक आदमी है, आप कभी जाओगे एमएस वगैरह करने का, कोई आपका गया होगा यूएस में, तो वो एक मॉन्टगोमरी नाम का वो स्टैटिस्टिशियन है, बहुत अच्छा पढ़ाता है मैथ्स वगैरह, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये वो, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में भी उसका बहुत कंट्रीब्यूशन है। मॉन्टगोमेरी, प्रोफेसर मॉन्टगोमेरी, उसके बुक में से मैंने ये ले लिया है। तो वो बुक खोला तो उसका ये नहीं आ रहा है प्रिंट वगैरह, तो मैंने तो वो देख के टाइप किया, फिर उनके बुक का एक दिया था अच्छा सैम्पलिंग प्लान का, मॉन्टगोमेरी। C is an acceptance number, let us say 2, okay, and D is the number of observed defective items, तो उसने D बोला है मॉन्टगोमेरी ने, अपन R बोल सकते हैं, रिजेक्शन नंबर R, so D or R even it is less than or accept the lot, दो एक या तो यस सर, यस। हाँ ओपन हो रहा है ना, हाँ, क्योंकि मैं बोला ये मेरे को जैसा ये स्क्रीन नहीं ओपन हो रहा है वैसा आपका माइक ओपन नहीं हो रहा है क्या, ऐसा मुझे लगा। ठीक है, अदर स्टूडेंट चुप है क्या, सो गए? हेलो। यस सर। अच्छा, आर यू एंजॉइंग द सेशन ना? हाँ, यस कुछ सर। फीडबैक आज आया नहीं, यस क्योंकि बच्चे बीच बीच में गप्पा मारते रहते हैं मेरे से, कुछ पूछते रहते हैं, तो दिस इज क्वाइट सिंपल थिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, या हो सकता है मैं सिंपल करके बता रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है। सिंगल सैम्पलिंग प्लान, तो जैसा यहाँ पे बताया सिंगल सैम्पलिंग प्लान, वही हाँ ये देखो, ये उसका रेफरेंस दे दिया है मैंने, www.stat.new, ये वो मॉन्टगोमेरी का बुक है। तो ये आपको फिर से वही मैंने दे दिया रेफरेंस के लिए आपके। अभी डबल सैम्पलिंग प्लान, हाँ डबल सैम्पलिंग प्लान, हाँ अभी इसमें क्या है मालूम है क्या, कभी कभी प्रोड्यूसर और कंप्लेन करता है सर क्या है आपका ये प्लान, हमने 1000 भेज दिया, आपने 50 ले लिया, और उसके एक के बल पे आपने ऐसा कर दिया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपने वही गलत लिया होगा, उसमें ज्यादा एक आधा आ गया, और उससे हमारा पूरा 1000 का 10,000 का आप लोग भविष्य तय कर रहे हो। तो इट इज नॉट अ गुड थिंग, आप थोड़ा सा चेंज करो आपके प्लान में कि सर हमारा बहुत मेहनत जाता है, वो परवड़ता नहीं हमको, ये आप एक तो आप इतना रेट दे रहे हो और ऐसा आप रिजेक्ट करोगे तो हमारा बहुत नुकसान होगा, ये हमको ऐसा ठीक नहीं। फिर आपको भी लगा कि भाई जो क्वालिटी अच्छा आता है उसका सेल भी बहुत अच्छा है, उसका यूटिलिटी अच्छा है, हम थोड़े से कारण के लिए उनका एंटायर लॉट रिजेक्ट करेंगे, तो फिर अपने को भी बाद में वो
पार्ट मिलने में टाइम लगेगा, उनको भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपने थोड़ा सा प्लान चेंज कर दिया, फिर नेगोशिएट करके आपने प्लान चेंज किया। डबल सैम्पलिंग प्लान क्या है मैं बताता हूँ अभी आपको। हाँ, एक 10,000 का वो सेम लॉट है। हाँ, सेम 10,000 का लॉट है। तो आपने पहले 50 सैंपल ले लिए N1। बच्चों ध्यान से सुनो। हाँ, पहला 50 ले लिया हमने सैंपल N1। अभी उसके लिए हमने एक एक्सेप्टेंस नंबर डिसाइड किया। कितना है? 2। ओके, 2। If 0 defective, 1 defective, 2 defectives you get in that lot, you will definitely you are going to accept the lot. अभी मैं आपको बताता हूँ, रिजेक्शन नंबर यहाँ पे 4 रहेगा, 4 यानी 3 को वो लोग एडवांटेज देने वाले। बॉर्डर केस है ना 3। बच्चों आर यू गोइंग टू अंडरस्टैंड? हेलो हेलो, क्रंच कहाँ है मैं बता रहा हूँ। हेलो। हाँ सर। हाँ, तो Yes, C1 sir. एक्सेप्टेंस नंबर कितना है? C1 2 है। मैं जाते जाते एग्जांपल देके जा रहा हूँ आपको, तो ज्यादा आपको समझेगा। N1 50 है, C1 is 2। ओके, हाँ, C1 is 2 एंड रिजेक्शन नंबर इज 4। ओके, रिजेक्शन नंबर इज 4। तो 4 या 4 में से ज्यादा डिफेक्टिव है तो फेंक देने का, देखने का भी नहीं। गो आउट, गेट आउट, गो टू योर शॉप, हाँ, नया भेज दो। 2 से कम है, विलिंगली एक्सेप्ट, थैंक यू वेरी मच सर। 3 निकला, हाँ, डबल सैम्पलिंग प्लान चालू होता है। 3 निकला तो क्या करने का? बॉर्डर इधर भी है उधर भी है, एक्सेप्ट करूं या नको? आपके मन में डाउट आया, सेकंड सैंपल उठाया 50 का रैंडमली। देखो बच्चों, सेकंड सैंपल उठाया, पहले सैंपल में मिक्स किया। सेकंड सैंपल उठाया, पहले में मिक्स किया। अब उसका मिलके देखेंगे हम लोग। उसका एक्सेप्टेंस नंबर हम लोग डिसाइड करेंगे। वो एक्सेप्टेंस नंबर हम लोग डिसाइड करेंगे। वो अगर 3 है, अभी यहाँ से प्लान स्टॉप करने का है हमको सेकंड सैंपल का। सो 3 और 4 इसमें हम लोग ये करने वाले, डिसाइड करने वाले। 3 से कम है एक्सेप्ट, 4 से ज्यादा है रिजेक्ट। ओके, सो C2 is the acceptance number of second sample. The number of में कुछ नहीं है, क्या था ये, इतना ही C2। तो आगे जाएंगे हम लोग। हाँ, ये देखो, inspect a random sample of N1, double sampling plan continue है from the lot. D1 is number of observed defective। हाँ, इधर काम आता है वो जो D1 बोले, D1 is number of defective in observed defective. If D1 is less than or equal to C1, accept the lot. D1, that is number of observed defectives in the first lot. वो अगर आपका एक्सेप्टेंस नंबर है पहले वाले सैंपल का, उससे कम है या इक्वल है, तो वी विल एक्सेप्ट द लॉट। और C2 एक रहता है, वो रिजेक्शन नंबर रहता है। C2 इज एक्चुअली रिजेक्शन नंबर। उससे अगर ये डिफेक्टिव तुम्हारे ज्यादा है तो वी विल रिजेक्ट द लॉट। अगर C1 और C2 के बीच में है, यानी ये C1 मेरा 2 था और C2 4 था, अगर 3 है, मतलब D1 अगर 2 या 4 के बीच में है, तो इंस्पेक्ट रैंडम सैंपल ऑफ N2 100 फ्रॉम द लॉट। मतलब मिक्स करने का नहीं है बच्चों इसमें, एक्चुअली एक 100 मतलब डबल ले लेते हम लोग, डबल ले लेते, 100 ले ले N2 फ्रॉम द लॉट। अभी D2 is number of observed defective. D2 is number of observed defective. Now, if D1 plus D2, वो पहले वाला जो डिफेक्टिव था ना, वो नंबर अपने पास है यहाँ पे, हाँ, प्लस D2, यानी वो नया जो सैंपल लिया उसमें से जो हमने ले लिया है,
नंबर एक्सेप्टेड नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम वो उसमें मिक्स करेंगे पहले में, लॉट मिक्स नहीं करेंगे, डिफेक्टिव मिक्स करेंगे, उसका नंबर अगर C2 से कम है, व्हाट इज C2? दैट रिजेक्शन नंबर पहले वाला, तो एक्सेप्ट द लॉट। इफ D1 प्लस D2 यानी वो दोनों सैंपल का जो डिफेक्टिव का जो आइटम है वो C2 से ज्यादा है तो रिजेक्ट द लॉट। हम प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बाद में देखेंगे। तो ये एक्चुअली मॉन्टगोमरी का प्लान है। तो वैसे एक मल्टीपल सैंपलिंग प्लान है, लाइक डबल सैंपलिंग प्लान टिल द लॉट एंड, मतलब वो रुकेंगे नहीं,